وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صوبائی وزراء کی کارکردگی اور ناراض اراکین کے مطالبات سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم ناراض اراکین کو خود بھی ملیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات ہوگی۔ ادھر پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کا اعلان کر دیا۔ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی دنیا میں شخص عمران خان کی دیانت پر حرف نہیں اٹھا سکتا۔ اور جو لوگ اس وقت افواہیں اڑا رہے ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے، عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا۔ جو اتحادی ہم سے ناراض ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بزدار کہیں نہیں جا رہے، جو ناراض ہیں وہ بھی مان جائیں گے۔ عمران خان کے دورہ لاہور کے بعد وہاں سے اچھی خبریں آئیں گی۔ شیخ رشید کی پیشگوئی، مزید بولے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہوئیں، لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ 2021 میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 5 مشتبہ کیس سامنے آ گئے۔ ایک چینی باشندے اور ایک پاکستانی نوجوان نشتر ہسپتال ملتان اور 3 شہری سروسز ہسپتال لاہور میں داخل۔ ٹیسٹوں کے لیے نمونے حاصل۔ 5 افراد چند روز قبل چین سے آئے تھے۔ ادھر ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک بھی مریض نہیں۔ کراچی والوں کی ایک اور چھٹی سی این جی بھروانے میں گزرنے لگی۔ فلنگ اسٹیشن صبح 8 بجے 12 گھنٹے کے لیے کھلے تو گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گیس کی فراہمی رات 8 بجے تک جاری رہے گی۔ ادھر گیس کا پریشر کم ہونے سے گھریلو صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا۔ سکردو میں موسم کی خرابی برقرار، شہر میں دھند کا راج۔ اسلام آباد اور سکردو کے مابین پی آئی اے کی پرواز چوتھے روز بھی منسوخ۔ پرواز معطل ہونے سے مریض، مسافر اور زائرین کی بڑی تعداد پریشان۔ گلگت سکردو شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث زمینی راستہ بھی منقطع ہے۔ پاکستان پوسٹ کا اعلیٰ معیار کا منصوبہ تیار۔ 1,25,000 فرنچائز پوسٹ آفس بنانے کا اعلان۔ پروگرام کے لیے ماحول دوست الیکٹرانکس، سکوٹیز اور رکشے بھی تیار۔ 3 سال میں 2 لاکھ افراد کو براہ راست روزگار ملے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔ امریکی یونیورسٹی کے ماہرین نے روبوٹک کبوتر بنا ڈالا۔ دیکھنے میں بالکل حقیقی لگنے والے مشینی کبوتر کی تیاری میں اصل کبوتر کے پروں کا استعمال کیا گیا۔ ماہرین کو مستقبل میں ڈرونز کی ایسی ہی جدید تر اشکال سامنے آنے کی امید۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے کہا ہے کہ برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور اس سے متعلق انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا شاہی جوڑے کے دورے سے پاکستان کی سیاحت کو فائدہ ہوا۔ پاکستان میں بڑے مذاہب کے مراکز ہیں، سکھ پاکستان کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ ریلیجس ٹورزم جو ہے اس سے متعلقہ جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ پاکستان نے اپنے پالیسی جو ہے اس کو الائن کی ہے اور اس کو اجاگر کیا ہے کہ جی وہاں پر ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بھی جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے اس میں بھی انہوں نے فورن انویسٹرز کو ویلکم کیا ہے۔ نفیس زکریا نے کہا پاکستان کو ایشیا میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ نئی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری کی وجہ سے برطانیہ کے کاروباری حضرات کو بھی فائدہ ہوگا۔ برٹش پاکستانی بھی ٹریول ایڈوائزری کے نتائج سے مستفید ہو سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ برطانیہ میں وہ بزنس مین، وہ لوگ جو ٹورسٹ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے دیکھتے ہیں، ان کو پاکستان میں بے تحاشا اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔
تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. برطانیہ گورنمنٹ نے جو ہے یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے جو کہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں صحیح سمت میں ہے. اس سے بزنس کو فروغ ملے گا, اس سے ٹورزم جو ہے جو برطانیہ سے ہوگا اس کے فروغ ملے گا. اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو برطانیہ کو برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, وہ ممالک بھی جو ہے یقیناً پاکستان کی طرف جو ہے اپنی توجہ منظور کریں گے. نفیس زکریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ برٹش ایئر ویز کے علاوہ دیگر ممالک کی ایئر لائنز بھی پاکستان جا رہی ہیں. پاکستانی ہائی کمشنر نے بتایا کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو برطانوی ایوانوں تک پہنچایا گیا, جس کے نتیجے میں مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا. غلام حسین اوان, 92 نیوز, لندن. برطانیہ 31 جنوری کو رات کے 12 بجتے ہی یورپی یونین سے راستے الگ کر لے گا. یورپی شہری برطانیہ میں اور برطانوی شہری یورپ میں جا کر 31 جنوری سے قبل اپنے قانونی حقوق کے لیے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس اہم معاملے پر ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم نے بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے بات چیت کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں بیرسٹر راشد اسلم صاحب موجود ہیں, جن کا امیگریشن کے اندر بڑا ایک نام ہے. اس کے علاوہ جو برطانیہ کی پولیٹکس ہے اس کے اوپر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بریگزٹ 31 جنوری کو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, ملکہ برطانیہ نے دستخط بھی کر دیے ہیں, بریگزٹ جو بل ہے باقاعدہ قانون بن چکا ہے. تو بیسیکلی 31 جنوری کے بعد ہوگا کیا؟ پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پھر کس طرح یورپی جو باشندے ہیں یہاں پر کس طرح اپنے جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 31 جنوری کو رات کے 11 بجے بریگزٹ ہو رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, ہمارے سارے جو لوگ ہیں. اب اس میں جو یورپین باشندے اگر تو 31 جنوری سے پہلے یہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں اور اپنے ایکسرسائز جو ٹریٹی رائٹس کا ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں, اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, پھر تو وہ یہاں پہ لیگلی رہ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے, اس کے بعد 31 کے بعد آتے ہیں, تو پھر ان کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جانا پڑے گا. لیکن اس میں آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 31 دسمبر 2020 تک اگر آپ یہاں پہ ہیں اور آپ یورپین نیشنل ہیں تو آپ یہاں کی جو سیٹل سٹیٹس اسکیم ہے یورپین باشندوں کے لیے نکالی گئی ہے, اس میں آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ نے 5 سال یہاں پہ نہیں گزارے بینگ یورپین سٹیزن یا بینگ اے پارٹنر آف یورپین سٹیزن یا ڈپینڈنٹ, تو آپ کو پری سیٹلز کیٹیگری میں سوئچ کرنا پڑے گا. اگر 31 دسمبر 2020 کی مدت گزر جاتی ہے, اس کے بعد اگر کوئی شخص یہاں پہ آتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ ایک اسپیشل ویزا یہاں پہ شروع کیا جائے گا جس کو یورپین لمیٹڈ ٹیمپریری لیو کا نام دیا گیا ہے. اس میں آپ کو 36 ماہ کا ویزا ملے گا. 36 ماہ کے بعد جو بھی یورپین آئیں گے ان کو مختلف کیٹیگریز میں سوئچ کرنا پڑے گا. اب ہوم آفس نے بہت ساری نئی امیگریشن کیٹیگریز یہاں پہ سٹارٹ کی ہیں, جس میں پوائنٹ بیس سسٹم آسٹریلین طرز پہ لا رہے ہیں. جیسا کہ کل یہاں کے جو پرائم منسٹر انہوں نے ایک اچھی خبر دی. ٹھیک ہے, لیکن میں بریگزٹ کے بارے میں فی الحال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تو یہ بتایا یورپی باشندوں کا, جو برطانوی باشندے ہیں, جو برطانوی شہری ہیں, ہم آپ یہ جب یورپ جائیں گے تو ان کو کتنا افیکٹ کرے گا؟ یہ دیکھیں, اگر یہ یورپ جاتے ہیں, اگر تو 31 سے پہلے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے رائٹس سیکیور ہیں. اگر کوئی شخص جا کے یورپ میں بسنا چاہتا ہے تو اسی طرح جس طرح یہاں پہ یورپین آئیں گے ان کو ویلکم کیا جائے گا, تو اگر یہاں سے کوئی جاتے ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ ویلکم کیا جائے گا ایک مخصوص ڈیٹ تک. اور اس کے بعد جاتے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ لیو میں سوئچ کرنا پڑے گا. اس میں جو رائٹس کے حوالے سے اگر آپ وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک ٹیمپریری لیو دی جائے گی 6 ماہ کی, موسٹ پروبیبلی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس میں آپ کا ویزے کی انٹری جو ہوگی, اس کے بعد اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو ان کی امیگریشن جو ڈومیسٹک جو کیٹیگریز ہیں امیگریشن کی, اس میں سوئچ کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے اگر آپ نے ایکسرسائز آف ٹریٹی رائٹس کرنے ہیں یورپ میں تو آپ 31 جنوری سے پہلے جائیں, وہاں پہ اپنا جو بھی ہے انشورنس نمبر لیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کروائیں. باقی اگر وہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 31 ڈیڈ لائن ہے. ابھی 31 دسمبر 2020 جو ہے یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے, جی اس پہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ملک کے یا بورس جانسن جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے اس کی درخواست بھی کر سکتے ہیں, اس کو بڑھا دیا جائے. بالکل اس میں ہو سکتی ہے. اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہی جو ہے وہ جون 2021 تک ڈیٹ چلی جائے گی. لیکن آج تک آبویسلی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس میں بریگزٹ ہونے میں. تو ابھی تک تو 2020 کی جو ڈیٹ ہے وہ مد نظر رکھی جا رہی ہے. اگر کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے یورپین یونین کے ساتھ تو پھر یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. 6 ماہ کے لیے فردر اس کو آگے کر دیا جائے گا. لیکن تا وقت ابھی فی الحال یہ 31 دسمبر 2020 ہے. اچھا, اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بریگزٹ ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے, ملکہ کے سگنیچر ہو سکیں. اب کوئی ابہام تو نہیں ہے اس میں ویسے؟
देखें, ये तो यहाँ की अवाम ने बहुत क्लियर वोट दिया इसके हक में कि जी ब्रेग्जिट होना चाहिए, क्योंकि अवाम खुद तंग आ गए थे। पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि अवाम ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को एक साइड पे लगा के कहा कि इनफ इज़ इनफ, हम एक तरफ होना चाहते हैं। क्योंकि जो पार्लियामेंट में हो रहा था कि एक बिल मंजूर हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, लोग इस पूरी सिचुएशन से तंग आ चुके थे। दूसरा, इकोनॉमिकली लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, यहाँ की इकॉनमी बहुत नीचे गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी, सर्विसेज मार्केट या बाकी अगर देखें तो बिजनेसेस बहुत हद तक नीचे गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रेग्जिट हो जाता है तो उसके बाद अब मार्केट बेहतर होगी, इकॉनमी यहाँ की बेहतर होगी। अगर आपने देखा हो इलेक्शन के फ़ौरन बाद यहाँ की स्टॉक मार्केट जो थी उसमें चढ़ाव आया और बड़ी तेज़ी से आया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है यहाँ की सोसाइटी के लिए, इकॉनमी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। थैंक यू जी। यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट शफक मोहम्मद की जानिब से भारत के मुतनाज़ शहरियत कवानीन के खिलाफ करारदाद पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। करारदाद पेश करने में शफक मोहम्मद के साथ रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट पेट्रास ऑस्ट्रियाकस, कैथरीन बैरड, फिल बैनन, कैटलन से और दीगर ने भी हिस्सा लिया। करारदाद में भारतीय शहरियत कानून की मजम्मत करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना करार दिया गया। दूसरी जानब कश्मीर काउंसिल EU का कहना था यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की जानिब से शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद पेश किया जाना खुश आइंद है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्पेशल ज़िमनी इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट 7 से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर जे जेलेसी कांग्रेसमैन बनने के लिए पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी उनका साथ दे तो वह अमरीका में एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर हसन जेलेसी कांग्रेसमैन बनने के लिए पुरुमीद हैं। वो मुसलसल 2 बार मैरीलैंड असम्बली की रुकनियत हासिल करने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी समाजी शख्सियत मुनीर खटाना ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों का कहना है डॉक्टर हसन जेलेसी की जीत के रोशन इम्कानात हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पहले पाकिस्तानी अमरीकी होंगे जो कांग्रेस के रुकन मुंतखब होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान अमेरिका के नेशनल इलेक्शन में इन्वॉल्व हो, ताकि वो मोर वोट्स और मोर नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर जे जेलेसी के लिए, ताकि वो कांग्रेसमैन इलेक्ट हो सके और पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो अमेरिकन पॉलिटिक्स में। बहुत कम लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज बड़ा मज़ा आया है। आज देखा है, आज इनवाइट किया है लोगों को माशाल्लाह। 100 पीपल्स जो है उनका एक्सपेक्टिंग थी कि वो 100 पीपल आएंगे, लेकिन तकरीबन 300 से ज़्यादा बंदे, 400-500 बंदा है यहाँ पे। ये इवेंट सिर्फ हमारी जो पहली नस्ल है, जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, तो हम अपनी आगे वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको हम एजुकेशन दें ताकि वो आगे आएँ। कल को यही लोग जो हैं ताकि इनमें ऐवानों में जाएं और यहाँ की आवाज़ जो है ना पाकिस्तानियों की, वो ऐवानों में पहुँचा सकें। हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि USA में हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए वो कांग्रेस के मेंबर सेलेक्ट हुए हैं, और हमारी सबके लिए दुआ है हम कि वो इंशाल्लाह ताला वो हमें कामयाब व कामरान करेंगे, और इसका सिला जो हमारी नस्ल जनरेशन तक ये जाएगा। पहले पाकिस्तानी कांग्रेसमैन होंगे, बल्कि पहले साउथ एशियन होंगे। इससे पहले 2 इंडियन हैं, लेकिन वो यहाँ पे पैदा हुए थे। तो ये पहले पाकिस्तानी होंगे जो कि कांग्रेस के लिए इलेक्ट होंगे, और कांग्रेस के लिए ये एक बहुत अहम सीट है, क्योंकि अलाजा कमन की सीट है, जो कि हम जानते हैं कि बहुत बड़े, ना सिर्फ कांग्रेस में तो थे ही, लेकिन उनको बहुत बड़ा समाजी कारकुन भी माना जाता था। डॉक्टर साहब बड़े मौजूद तरीन उम्मीदवार हैं, 2 दफ़ा डेलीगेट रह चुके, डेलीगेट हैं, अभी भी डेलीगेट हैं वो। और इसके बाद इनका जितना पाकिस्तानी अमेरिकन का जितना पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की जीत है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जीत है, और इनका कांग्रेस तक जाना हमारे लिए, बड़ी कम्युनिटी के लिए बड़े फख्र की बात है। कराची से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हसन जेलेसी का कहना है उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को अमरीकी ईवानों तक पहुँचाया। उनका कहना था अगर लोगों में मसाइल से आगही और शऊर नहीं होगा तो अमरीका में कामयाबी नहीं होगी। मेरे पीछे सैकड़ों अफराद का मजमा बैठा हुआ है, और ये सब इसलिए आए हैं कि मेरी कैंपेन को सपोर्ट करने, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं अमेरिका की तारीख में पहला पाकिस्तानी अमेरिकन होऊंगा जो ये इलेक्शन जीतेगा, और इसकी हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन की जो प्रॉब्लम्स हैं फेडरल लेवल पे, उनको देखने वाला, उनको समझने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। मैं मैरीलैंड असेंबली का मेंबर 2 बार मुंतखब हो चुका हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं इस इलेक्शन में भी कामयाब होऊंगा। मैरीलैंड की निशस्त रुकन कांग्रेस के इंतकाल के बाद खाली हुई है, जिसमें नए रुकन के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी और 8 उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी मैदान में उतारेगी।
कामयाबी की सूरत में अमरीकी तारीख में डॉक्टर हसन जलीसी पहले पाकिस्तानी नयाद कांग्रेसमैन बन सकते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे के एजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात की नौमुंतखब बॉडी की जानिब से शानदार इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी चौधरी वसीम अख्तर रामे ने नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो ओवरसीज के न सिर्फ मसाइल सुन रहे हैं बल्कि इनको हल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज PTI दुबई के नौ मुंतखब सदर चौधरी जावेद इकबाल की जानिब से इनके एजाज में एक शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। चौधरी वसीम रामे को इशाइया तकरीब में शुरका की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वाइस चेयरमैन ने इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। ओवरसीज़ हमेशा से जो है हमारी पार्टी की प्रायोरिटी रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी हमेशा कहते हैं कि ओवरसीज़ उनके दिल के बहुत करीब हैं। तो इनके जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में मौजूद है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इनको सहूलियात दी जा रही हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खुसूसी चौधरी वसीम अख्तर रामे ने ओवरसीज़ कमीशन पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से बताया। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरीना मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ऑफिस के अंदर अभी नादरा का ऑफिस जो है वो भी बन रहा है कि जितने भी आपके कार्डों के मसाइल हैं आप डायरेक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के अंदर से भी अपना जो नादरा कार्ड इशू करवा सकेंगे। साथ साथ आपके जितने भी मसाइल हैं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पे वन विंडो ऑपरेशन के तहत हम काम कर रहे हैं। हमें एक एप्लीकेशन दें, आपका कोई भी ग्रीवियंस है किसी पार्टी किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, किसी अदारे के ख़िलाफ़, इवन के आपके कोर्ट केसेस जो हैं उनके लिए भी जो हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं सेपरेट बन गई हैं ओवरसीज़ की, जहाँ 6 माह के अंदर अंदर फैसले होते हैं और वो कोर्ट्स हैं कि जिसमें आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वीडियो लिंक के थ्रू अपना बयान दे सकते हैं और आपके केस की हेयरिंग होगी। तकरीब के मेज़बान और नौ मुंतखब सदर चौधरी जावेद इकबाल का कहना था कि अपोजिशन जमातें मुल्की मसाइल पर सियासत कर रही हैं, इनके पास कोई हकीकी एजेंडा नहीं। हमें इमरान खान साहब पर पूरा यकीन है। जब इंसान की नीयत और कुव्वत ईमानी साथ हो तो हम घबराए नहीं हैं, हम साथ हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की साथ मजबूत हुई है वो हर कोई जान रहा है। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल बेउम्मीद नहीं हुए। स्पोक्स पर्सन ओवरसीज़ कमीशन UAE मलक मुनीर एवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्की मसाइल के हल में संजीदगी से काम कर रही है और बहुत जल्द इसके समरात आना शुरू हो जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, जिसमें पहली दफ़ा हमने देखा है कि ओवरसीज़ इतनी कोशिशें हैं हम सब के लिए जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं। तकरीब में मोहम्मद नवाज़ खान जदून, यास्मीन कंवल, सबिहा सैफ, मोहम्मद सरमद, अजीज़ुल्लाह, अमीर गनी, अमजद इकबाल अमजद और समाम खान समेत तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली नदीम भारा ने बिलखसूस शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुफ्ती फजल गफूर के एजाज में JUI मुत्तहिदा अरब अमारात ने शारजा में ज़ुहराने का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। JUI फे के मरकजी रहनुमा ने पार्टी के आइंदा लाहे अमल के हवाले से आगाह किया। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। JUI फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती फजल गफूर इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। शारजा के मकामी रेस्टोरेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात JUI फे के अमीर ज़ाहिर नदीम की ज़ेर सदारत इनके एजाज़ में शानदार ज़ुहराना दिया गया। मुफ्ती फजल गफूर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि JUI फे के धरने के असरात आना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है, क्योंकि ये अवाम के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी मुफ्ती फजल गफूर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। PTI के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। JUI ने मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में सियासी जमूद को तोड़ दिया है। अब तो थोड़े थोड़े से ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस तरह की एक बड़ी मजबूत हुकूमत को गिराने के लिए कुछ न कुछ वक्त तो दरकार होता है। इंशाल्लाह 1-2 महीनों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। इस मौके पर अमीर JUI मुत्तहिदा अरब अमारात ज़ाहिर नदीम का कहना था कि इस हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया है। अवाम को इनसे निजात दिलाएंगे, निजात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। इस हुकूमत को लाया गया है और पाकिस्तान को खोखला करने के लिए लाया गया है। अब पाकिस्तान की आवाम की हालत आपके सामने है और पाकिस्तानी आवाम इस वक्त बलक रही है, आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर चीनी के मसाइल हैं। हम चाहते हैं
हमारी जमात चाहती है, पाकिस्तानी और इदारों से हम गुजारिश करना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को जो है इन नाअहलों से निजात दें। JUI शारजा के मरकजी रहनुमा हदायतुल्लाह का इस मौके पर कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है। इसके पीछे आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कामयाब होते नहीं देखना चाहती। मुफ्ती फजल गफूर साहब ने मुदल्लल गुफ्तगू किया और तफसीलन बात किया कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, मजहबी मसाइल भी है और आजकल महंगाई के बहुत अवाम बहुत सताए हुए हैं, तो उसने मुदल्लल बयान किया है उसके ऊपर। ज़ोहराना तकरीब में सुबह खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार किया। आखिर में मेहमानों की रवायती कबायली खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। सख्त जाड़ा हो, सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो, ऐसे में कुछ खाने को ऐसा मिल जाए जो जिस्म में हरारत पैदा कर दे तो और क्या चाहिए। रावलपिंडी के इलाके सदर में साल हर साल से कायम देसी मुर्ग से तैयार करदा यखनी भी सर्दियों की ऐसी ही सौगात में से एक है। हमें बता रहे हैं इस हवाले से साजिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी कैंट के इलाके सदर में गुज़िश्ता 40 साल से कायम देसी मुर्ग से तैयार करदा यखनी सेंटर आज भी लोगों में इतना ही मकबूल है जितना पहले हुआ करता था। देसी मुर्ग की यखनी, देसी उबले अंडे, साथ में खालिस मसाला जात की आमेजिश शहरियों को अपनी तरफ खींच लाती है। सर्दियों में बेहतरीन चीज़ है पीने के लिए, इस टाइम सेहत के लिए भी, बजाय किसी फास्ट फूड है दूसरी देसी चीज़ है। जितनी ठंड है बाइकर्स बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वैसे भी पीनी चाहिए यखनी, लेकिन अगर देसी यखनी मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसका ट्रेडिशनल जो है ना टेस्ट है और सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स जो है ना हम यहाँ पे जो है ना परमानेंटली सर्दियों में जो है ना हम इधर पी रहे हैं। एक यूनिक टेस्ट है इसका। यखनी सेंटर पर मर्दों के अलावा खवातीन और फैमिलीज के बैठने का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि लोग सर्दी में गर्मा गर्म सूप को एंजॉय कर सके। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। चनियोट में खुश्क मेवाजात के इम्तजाज से देसी गुड़ रिवायती तरीकों से तैयार किया जाता है। इलाके की इस खास सौगात को मिठाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो सर्दी के मौसम में अक्सर समझी जाती है। इस गुड़ की तैयारी के हवाले से देखते हैं कलीमुल्लाह बलोच की ये रिपोर्ट। तरह तरह की मिठाइयाँ आ गईं, लेकिन गुड़ वाहिद शय है जिसकी कद्र में कमी नहीं आई। गुड़ की तैयारी के लिए गन्ने का रस निकालने से लेकर घंटों बड़े कड़ाहे में पकाना मेहनत तलब काम है। पिस्ता, बादाम, मूंगफली, तिल, 4 मगज नारियल, देसी घी और दूध शामिल करके इसे मजीद लजीज बनाया जाता है, जिसके बाद इसके ढेले बनाएं और फिर शौक से खाएं। ये दोस्तों की फरमाइश थी तो इसलिए उन्होंने कहा ये गुड़ जो है ना आपके पंजाब में देसी गुड़ होता है वो हमारे लिए लेके आए। की फरमाइश पे ये मैं दुबई गुड़ लेके जा रहा हूँ। गन्ने की तासीर ठंडी जबकि गुड़ की गर्म होती है। खुश्क मेवाजात का इम्तिजाज इसकी ग़िज़ाइयत और लज्जत को भरपूर बना देता है। माहिरीन ग़िज़ा कहते हैं कि ये देसी मिठाई मैदे की बीमारियों और जोड़ों के दर्द जैसे अमराज में इंतहाई मुफीद है। किसान कहते हैं कि इस गुड़ की तैयारी में मेहनत दरकार होती है। देसी चीज़ें होती हैं, नुक्ताजात होते हैं, वो मतलब बहुत टेस्ट होता है तो हर बंदा इसे पसंद करता है। ये देसी सौगात हर खासो आम की पसंद है। लोग इसे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को तोहफे में भी देते हैं। गुड़ न सिर्फ कई बीमारियों के लिए अक्सीर है बल्कि खुश्क मेवाजात के मिलाप से तैयार करदा देसी गुड़ सर्दियों की सौगात भी है। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चनियोट। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।